वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इन जे क्लासेज अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एमसीक्यू सीरीज की नई शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए अपना जो क्वेश्चन था प्रीवियस क्लास में जो आपके लिए होमवर्क था उसको हम सॉल्व करते हैं। आई होप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ। फर्स्ट यू कंसिडर द नेम ऑफ द कॉर्नर्स ए बी सी डी E, F. Let us consider a Q naught charge means test charge placed at the center of the diagram. Do you know the force experienced by the Q naught charge is equal from each charges. So force experienced by charge placed at the A point, जो A पर चार्ज रखा है, एंड अपोजिट डायगोनली अपोजिट जो डी पर है, इनसे जो फोर्स आपका एक्सपीरियंस हो रहा है बाई टेस्ट चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट। सेम अलोंग बी एंड ई इक्वल एंड अपोजिट एंड सी एंड एफ। इट मीन्स जो नेट फोर्स आएगा एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ओ इज जीरो। सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। So net force experienced by the charge 0. So field is also 0. First method. Second, you can calculate the direct electric field intensity due to a single point charge. So E is equal to KQ by, let us consider the half diagonal of this side means AO is equal to BO is equal to CO, DO EO is equal to FO is considered as small r. So r square. So you know the electric field intensity due to all charges is equal. So net electric field intensity means vector sum of the all electric field intensities is 0 because all are cancel out from each other. So answer of this question is 0, option D. Next question. The potential to which a conductor is raised depends on. Here option is first option amount of charge, geometry and size of conductor, both A and B, only on A. So you can guess the answer of this question. Option C, both A and B. Next question. Two parallel plates have charges Q1 and Q2 on them and the capacitance is C. The potential difference between them. First, let us consider a parallel plate capacitor. So charge on first plate is Q1 and second plate is Q2. According to question, not consider, according to question. बट आप जानते हो बेटे प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द टू प्लेट्स in the space between them. The E is equal to E1 minus E2. What is E1 and what is E2? E1 is the electric field intensity due to plate first. So electric field intensity due to a plane sheet sigma upon 2 epsilon naught. Here sigma is the surface charge density. So sigma 1 upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught is equal to 2 epsilon naught is a LCM and sigma 1 minus sigma 2. What is the value of sigma 1?
sigma 1 is q1 upon A and sigma 2 is equal to q2 by A. What is A? Area of the plates. Then next point, sigma 1 minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. Put the value of sigma 1 and sigma 2. So 1 upon A is the common term. So you can write 2A epsilon naught into Q1 minus Q2. This is electric field between two plates. But बेटे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम. So you know V is equal to E into D. D means distance between two plates. So put the value 1 by 2A epsilon naught Q1 minus Q2 into distance. So what is the capacitance of the parallel plate capacitor? C is equal to A epsilon naught upon D. So this term is replaced by C. So what is the answer? Option B, Q1 minus Q2 upon 2C. Okay. Next question. A proton is accelerated from rest through a potential at 500 volts. Its final kinetic energy is. In this question, the calculation for kinetic energy. आप जानते हो kinetic energy is equal to energy stored by the charge particle, means charge into potential EV. So what is the charge on proton? Small e. According to options, you can see this is electron volt, right? So kinetic energy not in joule but in electron volt. Electron volt is another unit of the energy. So E into 500 volt. So option 500 electron volt. Option B. You know how many joules in 1 electron volt? So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल. तो आप इसको इजीली जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो. अपने से जूल में आंसर है तो आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रोटॉन इज रिलीज्ड एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy of the proton will be. What is the option? You can guess the answer. Proton moves from higher potential to lower potential. ओके. तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या प्रोवाइड करवाएगा उसको? पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज इन uniform electric field. So option B is the answer. Means potential energy of the proton will be decreases. Next, an alpha particle is accelerated from rest through a potential energy 500 volt. आपने previous questions में देखा था ऐसा ही question, but उसमें proton था and in this question alpha particle. You know about alpha particle? Alpha particle having positive charge plus 2e. So kinetic energy of the alpha particle is ev. Then what is the charge of alpha particle? 2e into 500 volt. So what is the answer? Option C. Next question. 4 charges each equal to minus q are placed at 4 corners of a square and a charge plus q is at its center. If this system is in equilibrium,
then the value of small q. So first point, let us consider a square having side small a plus q charge placed at each corners, means आपके सभी corners पे क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज, एंड सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द corners and plus q charge at the center, but system is in equilibrium, right? So according to equilibrium we can say net force on the central charge will always be 0. Okay, but if the system is in equilibrium then the value of small q. अब अपने पास जो फोर्सेज हैं ड्यू टू ऑल द चार्जेज एट एनी पॉइंट, आप पॉइंट्स कंसीडर कर दो ए बी सी डी। अपना सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है इट मीन्स सभी चार्जेज पर आपका फोर्स क्या आना चाहिए, नेट फोर्स 0। तो आप सेंटर चार्ज पे फोर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल बैलेंस 0। आप उससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम किसी भी एक पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, तो एक पॉइंट के लिए देखना माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, सभी कॉर्नर्स पे चार्ज है। ये आपका सेंटर पे रखा अपने पास प्लस क्यू चार्ज और साइड स्मॉल ए बी सी एंड डी, किसी भी पॉइंट पे जैसे हम सी पर निकाल रहे हैं तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी चार्ज, बी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एफ बी। डी चार्ज भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एफ डी। एंड ए चार्ज भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, एफ ए। एंड आपका जो सेंटर पे चार्ज है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, तो एफ ओ। अब आप इसको 1 by 1 निकालो कि फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू बी, तो अपने पास कितना आ जाएगा चार्ज, के Q1 Q2 तो Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सेकेंड एफ डी इज इक्वल टू के Q1 Q2 दोनों सेम है, ए स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, एफ ए के क्यू स्क्वायर। बट यहाँ डिस्टेंस देखो, ए सी इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड यू नो व्हाट इज द डायगोनल, रूट 2 into side, so root 2 into a whole square, kq square by 2a square। एंड लास्ट जो फोर्स है ड्यू टू चार्ज एट सेंटर, तो उसके रीजन से क्या हो जाएगा अपने पास, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन हाफ ऑफ द डायगोनल। इट मीन्स हाफ ऑफ डायगोनल क्या कि रूट 2 ए अपॉन ट्वाइस का होल स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 2a स्क्वायर बाई 4 देन 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है कि जो सिस्टम है कि फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट सी 0 मस्ट बी 0। इट मीन्स एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ डी प्लस एफ नॉट ओ इज इक्वल टू 0। अब इनको क्या कर रो, जो अपने पास अकॉर्डिंग टू सिमेट्री है फोर्स एफ डी एंड एफ बी है, ये किस पे लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और एट द 90 डिग्री। तो व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो अपने पास एफ डी एंड एफ बी का रूट 2
एफ ए प्लस रूट टू एफ बी प्लस एफ ओ इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप इन पे क्या करोगे, वैल्यूज पुट करेंगे हम सभी की। देखो इसके लिए बेटे आपने फॉर्मूला लगाया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एफ बी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी कोस 90। आपके जो 11th क्लास में हमने पैरेललोग्राम लॉ में किया था वेक्टर सम के लिए, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाता है। वैल्यू पुट करो, एफ ए क्या है अपने पास, के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस रूट 2 एफ बी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नेक्स्ट एफ नॉट 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, सभी से के 1 क्यू एंड ए स्क्वायर डिटेक्ट हो जाएंगे। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इज इक्वल टू, देखो सभी टर्म से हमने क्या के भी कैंसिल कर लिया है, स्मॉल क्यू एंड अपॉन में जो ए स्क्वायर है, अपने पास जो टर्म बचेंगी वो ये बचेंगी। जो LHS में जाके LHS टू RHS क्या हो जाएगी, माइनस ये वाली टर्म बचेगी यहाँ से क्यू बाई 2, नेक्स्ट यहाँ से अपने पास टर्म बचेगी माइनस रूट 2 क्यू। जब आप इसको अरेंज करोगे मीन्स क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस क्यू बाई 4 इंटू 1 प्लस 2 रूट 2। आपने ऐसा आंसर कैसे निकालोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑप्शंस, तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। मीन्स ये आपका जो ऑप्शन ए जो है, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, the electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having a charge capital Q and area A is। तो आप इसको ट्राई करेंगे, आपका जो ऑप्शन है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।